first question arises, what is sustainability? Why has sustainability become such an emergent issue that we are studying in classrooms, that we are having conferences over that, and that has has called for such a big conferences internationally wherein the scholars, the scientists, ecologists, environmentalists come together, sit together and deliberate upon. That is what we are going to have discussion on. Why sustainability? What is sustainability? Sustainability as a generic term means ability to sustain. Yes or no? Ability to sustain. Sustain means something which prolongs. That prolongs. कोई चीज जो कितना चलेगी, कितने समय तक चलेगी. So, in generic sense, we can talk sustainability maybe for life, for humankind, life on planet Earth, quality of life on Earth. This is a neutral term, sustainability. When we connect it to the life, connect it to the human being, then it belongs to the ability of humankind to lead a quality life at this planet. This is sustainability. But when we connect this term to the business sustainability, industry sustainability, organizational sustainability, then it becomes some particular towards that particular prefix. Business sustainability, sustainability of a particular business. Organizational sustainability, sustainability of a particular organization. Are you getting the point? Then its circumferences are defined to that particular domain. So let's start with the sustainability of mankind and then to connect it to the businesses, right? Why this sustainability is a question now? क्यों ये सवाल है? बहुत पहले ये सवाल ही नहीं था. Everything was very much balanced. Society, environment, economy. Go back to the ages wherein हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जोदारो और जो भी और सभ्यताएं रही हैं पीछे की. When machines were not there, when maybe many of such kind of ultra modern developments have not been there. Imagine that kind of situation जिसमें हम हमारी एग्रीकल्चर के लिए एनिमल्स का सपोर्ट होता था. आज एनिमल्स को हम देखते हैं सड़कों पे. आज ये जो खुले हुए जानवर, आवारा जानवर, या बिग इश्यू, इस पे सरकार बनती है, बिगड़ती है, वोट मिलते हैं, नहीं मिलते. गेटिंग द पॉइंट? ये इश्यू बनते हैं इलेक्शंस के. स्टेट का इश्यू है, डिस्ट्रिक्ट का इश्यू है, ये इश्यू नेशनल इश्यू है. इश्यू है. क्यों इश्यू है? क्योंकि वो एनिमल्स कहीं ना कहीं रिडंडेंट हो गए. वो क्यों सड़कों पे आ गए? वो क्यों आवारा हो गए? क्या ऐसी वजह थी? कहीं ना कहीं हमारा इंटरवेंशन, एक नेचुरल प्रोसेस में हमारा इंटरवेंशन, एंड दैट टू अनड्यू इंटरवेंशन, अनएथिकल इंटरवेंशन, इमोरल इंटरवेंशन, that has caused this situation to arise. That's why it has arisen. मुझे मेरी चाइल्डहुड का याद है कि ऐसा कोई समस्या ही नहीं थी. Go back 20 years, 15 years, that was not at all a problem. बैल होते थे, बैल से खेतों में हल चलाए जाते थे और किसान उनको रखता था. गाय दूध देती थी तब भी होती थी, नहीं दूध देती थी तब भी उसके खूंटे में बंधी रहती थी. एवरीथिंग वॉज सो फाइन. वो धान होती थी, चावल जिससे निकलते हैं, उसका जो वो जो स्टेम होता है, जिसको क्या कहते हैं, वो जलाया जाता है. पराली से नहीं सुनो,
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पराली जला देते हैं और उससे धुआं, स्मोक, और हमारे यहाँ 4-5 साल से हम देख रहे हैं कौन सी सिचुएशन होती है, स्मोक की सिचुएशन। नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। और दिल्ली एनसीआर में क्या हालत होती है कि आप सबके रिलेटिव्स भी वहाँ रहते होंगे, आप पूछिए, वो सब जानते होंगे। हो सकता है उन दिनों वहाँ के बच्चे आपके यहाँ कानपुर में आ जाते हो। आई हैव माई वन रिलेटिव जिनका घर है नौशील धाम में है, इलेक्शन कमीशन, मेरा कजिन है, इलेक्शन कमीशन में सेक्शन ऑफिसर है, सॉरी अंडर सेक्रेटरी है। उसकी फैमिली है, फैमिली क्या, बच्ची आ जाती है, उसकी वाइफ है फाइनेंस मिनिस्ट्री में और वो इलेक्शन कमीशन में, उसकी बच्ची आ जाती है नौशील धाम में, उसमें पेरेंट्स यहाँ छोड़ देते। This is something pertains to environment and then we call it environmental issue. Environmental issue कि pollution, this, that, ये एक issue है, environmental issue है। Animals की हमने बात की, वो भी environment का हिस्सा है। एक बात सच मानिए आप कि हमसे ज्यादा खतरनाक जानवर इस प्लेनेट पे नहीं है, वो हम हैं, ह्यूमन बीइंग, द मोस्ट ग्रेटेड एनिमल ऑन द अर्थ, जिसने पूरा बैलेंस बिगाड़ के रख दिया है, प्लेनेट, पीपल, प्रोसेसेस, इन सब का। ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, TBA, सोसाइटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी। पहले भी इकोनॉमी थी, पहले भी इकोनॉमी था, पहले भी लोग जीते थे, पहले भी पैसे आते थे, घर बनते थे, सब होता था, बट पीपल वर अवेयर ऑफ देयर इकोसिस्टम, दे वर कंसर्न टू देयर इकोसिस्टम। बट इन द रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज हमें ट्रैक्टर चलाने हैं, ट्रैक्टर मशीन्स मैन को रिप्लेस कर देती हैं, मशीन्स चीजों को फास्ट कर देती हैं, इसलिए हमने उनको यूज किया तो बैल और भैंसे जो थे वो रिडंडेंट हो गए। अब अगर उनको काटा नहीं जाएगा, जिसपे कि योगी जी ने पाबंदी लगा दी, तो वो आवारा होकर घूमने लगे। अगर वो बाकायदा स्लॉटर हाउसेस में जाते होते तो वो इश्यू नहीं होता। तो आज ये इश्यू है, आप करोगे क्या? क्योंकि किसान को हम मना नहीं पा रहे हो कि वो ट्रैक्टर छोड़ के इनसे हल जोते, खेत जोते, नहीं करेगा वो। क्या करोगे? वी हैव टू थिंक एंड दिस विल गिव यू न्यू पैराडाइम्स ऑफ थिंकिंग एंड दिस में ओपन सम अपॉर्चुनिटीज है। दिस इज अ बिग इश्यू, सोशल इश्यू, बहुत बड़ा सोशल इश्यू है, लेकिन एट द सेम टाइम अब आप पुरानी चीजों पे उसको ला नहीं सकते हो, तो अब इस इश्यू को नए डायमेंशन से सोचना पड़ेगा। ऐसे ये सस्टेनेबिलिटी इशू आपके बिजनेस के लिए एक कंसर्न बनते हैं। जैसे अब ये आवारा जानवर एक इशू बना, अब इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब योगी जी कहते हैं 900 रुपए हम किसान को देंगे, वो रखें, और वो 900 रुपए भी ले लेगा, फिर भी जानवरों को छोड़े रखेगा, रजिस्टर भी करा लेगा। You have to think something innovative, some good business model. क्या बिजनेस मॉडल निकल सकता है? पराली के लिए, पराली वॉज एन इश्यू। क्यों पराली इश्यू हुआ? अलियर तो मशीन में काट के उसको जानवरों को खिलाया जाता था, जो जानवर लोग पालते थे। 5 साल पहले किसी ने सुना था पराली का मुद्दा? बताओ, हम सब में कितने लोग पराली इश्यू जानते थे? शिल्पी जी बताइए, कितने लोग जानते थे? नहीं जानते थे, पर आज है और आज की रियलिटी है। तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर ये इश्यू है, आप उनसे कह नहीं सकते कि आप जानवरों को रखिए और आप उनको ये खिलाइए, पालिए, नहीं करेंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो पराली से लोगों ने फाइबर बनाना और कुछ बिजनेस मॉडल्स आए हैं जिन पे काम हो रहा है और जो चीजें आगे बढ़ेंगी। इश्यू हमेशा आते रहेंगे। कुछ सोसाइटी के होंगे, सोसाइटी जिससे डायरेक्टली अफेक्टेड होगी, कुछ सोसाइटीज के होंगे जिससे सोसाइटी या हम इनडायरेक्टली अफेक्टेड होंगे, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर इश्यू से हम अफेक्टेड होंगे, क्योंकि इकोनॉमी एक तरफ है,
डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरफ है और सस्टेनेबिलिटी दूसरी तरफ। जब हम उसकी कीमत पे, जब हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ की कीमत पे दूसरे साइड को डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। दिस लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। आपको बड़ी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए कंट्री की, उसके लिए आपको स्टील बनानी पड़ेगी, ब्रिक्स बनानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, रोड बनाने पड़ेंगे। रोड बनाने पड़ेंगे तो आपको फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा। बिल्डिंग बनेगी तो डिगिंग होगी, डिगिंग होगी तो मास का इधर का उधर होना होगा, डस्ट आएगी, बहुत सारी चीजें अचानक होने लगेगी। एसी आपको चाहिए क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए घर में आपको एसी चाहिए, एक चाहिए, फिर दो चाहिए, कार में चाहिए। क्या करेगा ये सब? सीएफसी, एनर्जी, तमाम सारे जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका एमिशन होगा। एनर्जी आपको चाहिए। एनर्जी पे आप देखिए कितनी सारे वेस्टर्न कंट्रीज कितना चिल्लाते हैं, और किन पे चिल्लाते हैं? इमर्जिंग इकोनॉमीज पे, इंडिया, चाइना, हम सब पे कहते हैं कि साहब कट करो, कार्बन एमिशन कट करो। क्यों? क्लीन एनर्जी यूज करो। कौन सी क्लीन एनर्जी? क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी यूज करो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आओ। इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने में इंडिया में मिल रहा है? 15 लाख का। कितने लोग इंडिया में 15 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे? ईवी। आपने तो सारा डेवलपमेंट कोयले पे कर लिया, कोयले पे। इंडिया से कह रहा हूं सोलर पे करो। इंडिया सोलर में किस लेवल पे आके ये सब कर पाएगा? एक सोलर पैनल लगाने में कितना एक्सपेंस आता है? कौन देगा? आप कितनी फंडिंग कर रहे हो? आपसे जब कहते हैं कि भाई इमर्जिंग इकोनॉमीज को फंड करो, सोलर सिस्टम में मदद करो, जो उसमें कंपोनेंट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए सोलर पैनल्स बनने के लिए, बैटरीज के लिए, वो सब आप दीजिए, थोड़ा सब्सिडाइज। नहीं, यही तो मेरा बिजनेस है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आप खरीदोगे, पैसा आएगा, तभी तो आपसे कह रहे हैं कि आप सोलर पे आओ, हमसे खरीदो। हमने डेवलपमेंट किया है कोल पे, पर आप अपना डेवलपमेंट किस पे करो? सोलर पे। क्यों? क्योंकि कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, यूवी रेज आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स ब्रेक हो रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, बहुत सारे देश डूब जाएंगे। इसलिए ये चिंता आपने करनी है। अग्रीड, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने वो सब करके खुद को डेवलप किया, बहुत पैसे कमाए, तो आपकी भी ये सोशल, मोरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गरीब देश हैं उनको आप फंड करें, उनको आप रिसोर्सेज दें और उनको आप हेल्प करें, सो दैट दे कैन कम ऑन ग्रीनर फ्यूल्स, ग्रीनर एनर्जीज। कैसे फैक्ट्री चलेगी, कैसे हमारी मशीन चलेंगी? ग्रीनर एनर्जी में आप हेल्प करिए ना, तो पैसे नहीं निकलते। सो सस्टेनेबिलिटी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है वो एनवायरनमेंट से। और जब हम बात एनवायरनमेंट की करते हैं, इकोलॉजी की करते हैं, तो सोसाइटी के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसलिए सोसाइटी भी बिल्कुल उससे अफेक्टेड होती है और पूरी 100% अफेक्टेड होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ रोकी नहीं जा सकती है, हर कंट्री एस्पायर करता है, हम आप सब एस्पायर करते हैं। हमारे घर में अगर एक एसी है तो हमें दूसरी एसी की रिक्वायरमेंट दिखती है। हमारे पास एक कार है तो हमें एक और कार की रिक्वायरमेंट दिख रही है। क्यों हम रोकें? अगर हमारे पास पैसा है तो हम लेंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं। कैसे? आपने तो अपना 100% सब, यूएस में आप तमाम कंट्रीज को आप देख लीजिए, डेवलप नेशंस को, किस लेवल पे उनके यहाँ एयर कंडीशनर्स हैं, किस लेवल पे इक्विपमेंट्स हैं, कितना ज्यादा रिडंडेंसी है उनके यहाँ। एक आदमी की जरूरत से 4 गुना ज्यादा है। हमारे यहाँ तो हम जरूरत पे लड़ रहे हैं ना अभी। ये इश्यू है, ये कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट और ईस्ट का, ये कॉन्फ्लिक्ट है G8 कंट्रीज का और इमर्जिंग इकोनॉमीज का, ये
और ये हर मीटिंग में इस पे बात होती है, इंडिया लीड करती है, चाइना लीड करता है इमर्जिंग इकोनॉमीज को, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज कभी खुश नहीं होती और हम भी कभी खुश नहीं होते। हम ना उनकी बात मानते हैं ना वो हमारी बात मानते हैं, और ऐसे ही साल 10 साल आगे बढ़ती चली जा रही है। अभी बता रहे, कभी मेरी वाइफ कह रही थी कि पोल्स पे 40 डिग्री टेम्परेचर जाते हैं, -57 के आसपास नॉर्मली रहता था और वो -17 के आसपास, 40 डिग्री का एप्रिसिएशन। क्या होगा? ग्लेशियर्स वीक होगी, ग्लेशियर्स वीक होंगे, ब्रेक होंगे, मेल्ट होंगे। कितनी बड़ी त्रासदी है। तो जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अगर सस्टेनेबिलिटी का इश्यू है तो वो एनवायरनमेंट का है। और फिर हम, क्योंकि आज कोई भी देश एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस के बिना नहीं है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है पर उसने बहुत सारे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, लीगैलिटीज रखी हुई हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हम सब देखते हैं पैकेजिंग पे हमारे यहाँ पॉलीथीन की पैकेजिंग नहीं हो, वर्जिन प्लास्टिक का यूज कम से कम हो, वन टाइम प्लास्टिक का यूज कम से कम हो। ये हम भी कर रहे हैं, हम भी लाइफ दे रहे हैं। स्क्रैप पॉलिसी हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी आ गई है कि हम स्क्रैप कर देंगे इतने साल बाद, पर हमारे यहाँ नियम बहुत है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑनेस्टली नहीं है। ये हमारे ही देश में नहीं, हमारे जैसे तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज में ये समस्या है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी रूल्स नॉर्म्स हैं उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम वो नहीं कर पाते। नियम कानून दुनिया में सबसे ज्यादा है हमारे पास। तो हमारे ये दोनों बातें अलग अलग हैं। नियम का होना एक बात है और नियम का तो दूसरी बात। तमाम देश ऐसे हैं जहां ये दोनों एक ही बात है। नियम होने का मतलब नियम का पालन होना, हमारे यहाँ दो अलग अलग है। तो अब हमें सस्टेनेबिलिटी पे ये ध्यान देना है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब अ सॉल्यूशन इन द इंटरसेक्शन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। और ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। यही अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले समय में, इन 3 सर्कल के इंटरसेक्शन में। वहीं पे हमको सॉल्यूशंस लाने हैं। वही सेंसिटिविटी हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है। वही होलिस्टिक सॉल्यूशंस के साथ हमको आना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा। हम भले ही लड़ते रहें, झगड़ते रहें, पर सच्चाई तो ये है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी सबकी लाइफ थ्रेट पे है। हमें ऐसे तो धरती बहुत बड़ी लगती है, लेकिन पूरे यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो धरती कुछ नहीं है। और ये एनवायरनमेंट, इकोलॉजी जो है बहुत टेंडर मैटर है, बहुत टेंडर इश्यू है। हमने बहुत त्रासदी देखे हैं। मुंबई में फ्लड हमने देखा है, सुनामी हमने देखी है। ये कैलाश था, वो कौन सी मूवी बनी थी, केदारनाथ, वो त्रासदी हमने देखी है। कितनी त्रासदियां हमने देखी हैं जिसकी सिर्फ वजह क्या थी, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कुछ और नहीं था। मुंबई की फ्लड कुछ और नहीं था। प्लास्टिक्स का यूज, ड्रेनेज सिस्टम का चोक होना, हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट और लोग। आप जिन चीजों को सैकड़ों साल में डेवलप करते हो, बनाते हो, नेचर को एक सेकंड नहीं लगता उसको डिवास्टेट करने। तब हम आपको अपनी औकात पता चलती है, तब बेसिकली हैं क्या और हम कितनी बड़े चैलेंज दे रहे हैं इस नेचर को, हम कितना थ्रेट दे रहे हैं इसको। पर ये हमारे पूर्वज जानते थे, देवी देवता करके सबको पूछते थे, सबका रिस्पेक्ट करते थे, जब पेड़ लगाते थे, पेड़ों का सम्मान, ये सब करते थे। हाँ, पूरा जीवन जी लेंगे, एक पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी विल बी एन इश्यू। और तब हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी। हमारे पूर्वज नहीं करते थे, मुद्दा ही नहीं था। हमारे 20-50 साल पहले ही मुद्दा नहीं था। बहुत सारे गांव में आज भी ये मुद्दा हो सकता है, नहीं हो, पर मुद्दा है और आज हमें इसके लिए बड़ी
होना पड़ेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आज एक पिच सेट कर ली है अपने कल के डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच। मुझसे पढ़ाते रहो, मैं तो पढ़ाता रहूँगा जब भी आपको पढ़ना। चलिए, आप इसको प्लीज इसको वाइंड अप कर दीजिए। आज मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, पीएचडी का, 1 घंटे